हाल ही में अपहृत ओएनजीसी के 2 अधिकारियों को रिहा करवा लिया गया है। बीती रात सेना और असम राइफल्स ने साझा अभियान चलाकर मोहिनी मोहन गोगोई और अलकेश सैकिया नामक 2 अधिकारियों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया और इधर तीसरे अपहृत अधिकारी रितुल सैकिया की तलाश में साझा अभियान अभी भी जारी है। अभियान के दौरान एक AK-47 राइफल भी जब्त किया गया है। तो आज अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। रिहा करवा लिए गए हैं ओएनजीसी के 2 अधिकारी। सेना और असम राइफल्स ने रात भर साझा अभियान चलाया और इसी अभियान के दौरान मोहिनी मोहन गोगोई और अलकेश सैकिया नामक ओएनजीसी के इन 2 अधिकारियों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया है। और इधर जो तीसरे अपहृत अधिकारी है रितुल सैकिया, उनकी तलाश अभी भी जारी है। साझा अभियान अभी भी चलाया जा रहा है और आपको यहाँ पे हम बता दें कि अभियान के दौरान ही एक AK-47 राइफल भी जब्त किया गया है। और वही रिहा हुए अधिकारी मोहिनी मोहन गोगोई के परिवार ने उनके रिहा होने पर संतुष्टि जताई है। খবৰটো মই বিশেষভাৱে আমাৰ নিজৰ ছোৱালী এজনীৰ পৰা হঠাতে ফোন এটা আহিলে যে বৰ্তা আপুনি টিভিটো অন কৰকচোন, তাত আমাক দাদাক কোনোবা চেনেল বোলে হেৰি দি আছে পাইছে বুলি কৈছে। অন কৰি পেলাই দেখিছোঁ যে হয় মোৰ ল'ৰাটো অলকেশ শইকীয়া, এই দুজনক সহায় কৰিছোঁ বুলি কৈছে। পুৱতি নিশা মন জিলা কোনোবা এটা চাইডত জেগা। এতিয়া আমাৰ চকু পানীয়ে বাট নেদেখা হৈছিল, কিন্তু পোৱাৰ কাৰণে খুবেই সৌভাগ্যৱান আমি পুলিচ প্ৰশাসন আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তাকো যথেষ্ট আৰু অন্যান্য দল সংগঠনকো মই বহু ধন্যবাদ দিছোঁ। কাৰণ তেখেতলোকৰ যথেষ্ট প্ৰচেষ্টাত যথেষ্ট সহায়ৰ বিনিময়ত সকলোখিনি প্ৰশাসনিক সহায় আপোনালোকৰ সহায়ৰ বিনিময়ত মোৰ ল'ৰাটো আজি নিৰাপদে উদ্ধাৰ হৈছে। জিলা প্ৰশাসন বা পুলিচ আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিবা জনাইছে নেকি? এতিয়ালৈকে মোৰ লগত কোনো যোগাযোগ কৰা নাই। অৱশ্যে তেওঁলোকৰ আগত আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছিল, FIR লগত দিয়া আছিল, অন্যান্য হেৰিয়াতো দিয়া আছিল। মাত্ৰ টিভি যোগেদি আপোনালোকে গম পাইছে? টিভি যোগেদি গম পাইছোঁ, কাৰণ ছোৱালীজনীক ফোন কৰি দিয়াৰ কাৰণে। পাইছোঁ এই ভাল পায়। মামা এজনে ক'লে যে ভাইটি ওলাইছে বুলি ক'লে, তেতিয়াই টিভিটো খুলিছোঁ, ভাইটিকে আৰু এজনক পালে বুলি কৈছে। তাকে পুলিচ প্ৰশাসনলৈ ধন্যবাদ দিছোঁ মোৰ ল'ৰাটো জৰিয়তে। আৰু নোপোৱাজনৰ কাৰণে কিন্তু বহুত বেদনাদায়ক হৈ আছোঁ আমি। সেইজনকো যাতে উদ্ধাৰ হওক আৰু ইমানেই চিন্তা কৰিছোঁ। যদি বহুত ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ পুলিচ প্ৰশাসন আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ ফাললৈও বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আপোনালোকে এইখিনি কৰাৰ কাৰণে মোৰ ল'ৰাটো পালোঁ। এইখিনিকে মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ মানে। আৰু ইজনকো পক, মুঠতে ইজন ল'ৰা নোপোৱাৰ কাৰণে বহুত দুখিত, কিন্তু তেওঁকো পক যাতে, মই সেইটোৱে চিন্তা কৰিছোঁ। অকল মোৰতো ল'ৰা নহয়, তেখেত তিনিওজনকে পোৱা হ'লে বহুত সুখী হ'লোঁ। এতিয়া কিন্তু মোৰ বেয়া লাগি আছে চাইছোঁ যদি টিভিটো। तो दोनों अधिकारियों के परिवार ने राहत की सांस ली है। ओएनजीसी के एक और अपहृत अधिकारी रितुल सैकिया का हालांकि अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। उनकी भी खोज में अभियान चलाया जा रहा है और इस बीच उनके परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आइए सुनते क्या कह रहे हैं। मैं रितुल शइकियार ककायक जे दुजन एकेलगर सतीर्थ 3জন কাম কৰি থকা অৱস্থাত কোন সংগঠনে ধৰি নিলে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। মন জিলাত নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত তেখেতলোকক দুজনক পাইছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ। আৰু আমাৰ ভাইটি ৰিতুল শইকীয়াক পোৱা নাই। আৰু আমিও যদি কোনোবাখিনি দুখ কৰিছিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে ক্ষমা কৰি আমাৰ ভাইটিকো পাম বুলি আশা কৰি আমি কাতৰেৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। মই ৰিতুল শইকীয়াৰ সৰু ভাইটি। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যি সংগঠনে আমাৰ ককাইদেউক লৈ গৈছে, বাকী দুজনক বৰ্তমানে ঘূৰাই পাইছে বাৰু, বাকী পাইছে বুলি জানিছোঁ। আমাৰ ককাইদেউকো যাতে সোনকালে ঘূৰাই দিয়ে আৰু কিবা যদি আমাৰ অজানিত ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি আমাৰ ককাইদেউক সোনকালে ঘূৰাই দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। रातुल सैकिया के परिवार के जो बात है हमने सुनी, काफ़ी चिंतित है परिवार और बार बार अपील कर रहा है कि सकुशल रिहा कर दिया जाए रातुल सैकिया को भी। आपको बता दें कि अलकेश सैकिया और मोहिनी मोहन गोगोई, इन 2 अधिकारियों को सेना और असम राइफल्स के साझा अभियान के दौरान छुड़ा लिया गया है, रिहा करवा लिया गया है। और इस बीच रातुल सैकिया की खोज अभी भी जारी है, अभियान लगातार चलाया जा रहा है।
दो अधिकारियों अलकेश सैकिया और मोहिनी मोहन गोगोई के परिवार के लिए राहत की खबर आज आई है। अब सुबह सुबह रिहा करवा लिया गया है। असम राइफल्स और सेना ने साझा अभियान चलाया पूरी रात और उसके बाद रिहा करवा लिया गया है ओएनजीसी के दो अधिकारियों अलकेश सैकिया और मोहिनी मोहन गोगोई को, जो हाल ही में बुधवार की रात को अपहृत हुए थे, अगवा कर लिया गया था। और एक अन्य अधिकारी भी इन्हीं के साथ अपहरण के शिकार हुए थे, अपहरणकांड के शिकार हुए थे, रातुल सैकिया। हालांकि उनके खोज में अभी भी अभियान जारी है, अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लेकिन जिस तरह परिवार गुहार लगा रहा है जल्द से जल्द रिहा कर दे सकुशल। सेना और असम राइफल्स का रात भर अभियान और बड़ी सफलता हाथ लगी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ हम आपको बता दें कि रातुल सैकिया जो ओएनजीसी के जो तीसरे अधिकारी हैं जिनका अपहरण किया गया है, उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। और जहाँ तक बात है रिहा हुए अधिकारियों की, अलकेश सैकिया की तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रिहा करवा लिए गए हैं। असम राइफल्स और सेना का साझा अभियान पूरी रात चला है और उसके बाद दोनों परिवारों के लिए, अलकेश सैकिया और साथ ही मोहिनी मोहन गोगोई के परिवार के लिए राहत की खबर आई। दोनों को रिहा करवा लिया गया है सकुशल। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है अलकेश सैकिया की। मैं बर सुखी হৈছোঁ এই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি মই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খবৰ পাইছোঁ। বহুত ধন্যবাদ সকলো মিডিয়ালৈকে। আৰু ইমানখিনি তৎপৰতাৰে কাম কৰিছে যদিও বহুতখিনি ষ্ট্ৰাগল হৈছে সেইখিনিত। আৰু তাৰ মাজৰ মাজে মোৰ ল'ৰাটো বাচি আহিছে, সেইটো ভগৱানক মানে মই কি বুলি কৃতজ্ঞতা মানে কি ক'ম আৰু মই সেই তেওঁৰে কৃপা। এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া জিপি সিঙে নিজে নেতৃত্ব লৈছে, সেনাবাহিনীয়ে নিজৰ তাতে অপাৰেশ্যন চলাইছে, তেখেতসকললৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ। ল'ৰাকেইটাক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু ইজনকো তেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'লে ভাল হয়, সুকলমে উদ্ধাৰ হয়। সিহঁতেও বহুতখিনি ষ্ট্ৰাগলৰ মাজত পাৰ হৈ আহিছে, হয়তো মই অনুমানহে কৰিছোঁ বাৰু। কিন্তু এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে আৰু শুনি। আৰু অসম চৰকাৰৰ ভূমিকা আছে, কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাটত কৈছে তেওঁলোকে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰশাসনৰো ভূমিকা আছে, মই গম পাইছোঁ। আমাৰ হিতেন গোস্বামী ছাৰ আহিয়ে আছে, সেই সন্দৰ্ভত মোৰ লগত কথা পাতিয়ে আছে। তেখেতকো ধন্যবাদ। তেওঁ প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত হৈ গোটেইখিনি কথা অৱগত কৰিছে আৰু বাকীখিনিও কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে তেখেতসকললৈ মোৰ অতি আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা আমি নিউজত চাই গম পালোঁ আৰু মই অলকেশ্বৰ শইকীয়া পেহাক হিচাপত মই এইটোকে ভাল পাইছোঁ যে নিউজটো দিয়াৰ পিছতেই। আৰু বিশেষকৈ মই অসম চৰকাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ মই সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। কালি তেখেতে যোৰহাটলৈ আহি আমাৰ এই যেতিয়া কেছটো তেখেতে আৰু বিশেষকৈ বিধায়ক আমাৰ হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীদেৱে তেখেতো আমাৰ ওচৰলৈ বাৰে বাৰে আহি আছে। এই কেছটোত তেখেতে হস্তক্ষেপ কৰিছে আৰু আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন সেনা আৰু আৰক্ষীৰ যি ভূমিকা সেইটো মানে বহুত ডাঙৰ বুলি ক'ব লাগিব। সেনা আৰু আৰক্ষীয়ে যিখিনি কৰিলে আমাৰ প্ৰশাসন অসম পুলিচেও, তাৰ মাজত জেপি সিং ডাঙৰীয়াই যেতিয়া এই কেছটো লৈছে, ভাল লাগিছে তেওঁলোকক পোৱাৰ কাৰণে। ইজনকো পোৱা হ'লে ভাল আছিলে, কিন্তু আজি বহুত ভাল লাগিছে তেওঁলোকক পোৱাৰ কাৰণে। আৰু মাকে মানে বহুত কষ্ট পাইছে, ৰাতি ৰাতি শুব নোৱাৰে, বহুত কষ্ট পাইছে। আমি ওচৰ চুবুৰীয়া আহি তেওঁক মাত দিওঁহি, ভাল লাগিছে আজি পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক। और अब इस पूरी खबर पर हम बात करेंगे हमारे संवाददाता रिपुंजय दास से। जी रिपुंजय, जानना चाहेंगे कि सेना की ओर से फिर कोई आधिकारिक बयान दिया गया है, कैसी स्थिति में है ये दोनों अधिकारी जिन्हें रिहा करवा लिया गया है, कहाँ रखा गया है और कब तक घर पहुंचने की संभावना है? रश्मि, देखिए इनका जो अपहरण किए गए व्यक्तियों में से दो का जो रेस्क्यू किया गया, इसके बाद से वहां पूरे मौन जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस का जो संचालन है वो काफी मात्रा में बढ़ गया है, क्योंकि इनको सेफ रखना एक बात है और साथ ही साथ में जो अभियान जो चलाया जा रहा है उसको भी तेजी लाया गया है उसमें भी। और इनको जो जहां तक हमें सूचना प्राप्त हुई है रश्मि, कि सेना के एक कैंप में अभी रखा गया है। इनकी जो इनिशियल जो इनकी चेकअप्स वो हो रहा है, इनिशियल पूछताछ चल रही है, क्योंकि रश्मि हमें ये इस बात का ध्यान रखना होगा कि तृतीय जो अपहरण
किए गए व्यक्ति है रितुल सैकिया, उनका अभी भी उनका पता नहीं है। और इस विषय में सेना का बहुत ही एक इंटेंस ऑपरेशन अभी भी जारी है। हम बार बार को जानने चाह रहे हैं, वहाँ के अधिकारीगण जो है उनका यही कहना है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि रात को रुक के 3 बार मुठभेड़ हुई है सेना और उग्रवादियों के बीच में। उग्रवादियों के दल में रश्मि हमें कहा गया है कि NSCN के भी कुछ सदस्य शामिल थे और उल्फा के सदस्य तो पहले से थे ही, उनके साथ में उनको बैकअप के लिए NSCN के भी कुछ सदस्य उसमें शामिल हुए, जिसके दौरान ही ये पूरा घमासान। तो रिपुंजय, कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है NSCN के जिस तरह के आपने बताया, आधिकारिक बयान है कि NSCN के जो सदस्य भी इस पूरे अपहरण कांड में शामिल है, अल्फा स्वाधीन का नाम तो जोड़ ही रहा था, अब इनका भी नाम जुड़ रहा है। बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आप। जी हाँ रश्मि, और इसमें और एक लीडर का भी नाम सामने आ रहा है NSCN के का, वो हम अभी खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी अभी पुष्टि होना बाकी है। उसके आधिकारिक रूप से पुष्टि होने के बाद ही हम करेंगे, क्योंकि ये बात ऐसा है कि नागालैंड में जब तक इनको ले जाया गया था अपहरण के बाद, नागालैंड से म्यांमार सुरक्षित पहुंचाना NSCN के एक टीम के ऊपर दिया गया था। और इसके चलते ही ये जो जॉइंट जो कार्रवाई है अल्फा इंडिपेंडेंट और NSCN के बीच, इसका पूरा इन्होंने पूरा प्रॉपर एक मैप रोड में बना लिया था, किस तरीके से इनको लेके म्यांमार पहुंचाएंगे कैंप में। उसके बाद जो अपना डिमांड्स है उसको लेके सामने आएंगे। लेकिन सुरक्षा बलों की दाग देने पड़ेगी रश्मि कि जिस तरीके से इन्होंने प्लान बनाया, जिस तरीके से ये लोग ट्रेस करते रहे, जिस तरीके से पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया ट्रेस आउट करने में इनको, और इनको ट्रेस आउट करने का इनका घेराव हुआ कल, और उसके साथ ही ये संघर्ष के बाद 2 जो अपहृत व्यक्तियों को छुड़वाने में सक्षम हुई। तो ये एक बड़ा सफलता है और आने वाले समय में हम चाहेंगे ये तीसरे व्यक्ति को भी सकुशल उद्धार किया जाए। जी बिल्कुल रिपुंजय, हम चाहेंगे जो तीसरे अधिकारी है वे भी सकुशल रिहा हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है, जिस तरह से आपने कहा कि 2 अधिकारियों को छुड़ाने में 3 बार मुठभेड़ का सामना करना पड़ा, ऐसे में जो तीसरे अधिकारी की तलाश की जा रही है, कितनी बड़ी चुनौती है सेना के सामने, असम राइफल्स के सामने साझा अभियान चल रहा है। सबसे बड़ा चुनौती अभी वही है रश्मि, यही बात हम कह रहे हैं। और वहां से जो अधिकारीगण है वो भी हमेशा यही बात बता रहे हैं कि 2 व्यक्तियों को तो जैसे उन्होंने छुड़वा लिया है, सक्षम हुए हैं, लेकिन तीसरा व्यक्ति उनके साथ रह जाना ये बहुत ही अभी एक खतरनाक विषय हो गया है। क्योंकि अभी इनके साथ जो फिर मुठभेड़ भी हुआ है और हथियार का बरामद होना, शायद किसी को वहां इंजरी भी हुआ होगा, और इसका डिटेल्स हमें बाद में मिलेगा। लेकिन इसके चलते अभी ये 3rd व्यक्ति का जो उनका जो सुरक्षा का विषय ये सबसे बड़ा की इश्यू हो गया है, जिसके चलते सेना ने, असम राइफल्स ने वहाँ जो म्यांमार बॉर्डर है उसको पूरी तरीके से घेर लिया है, और जो लोंगवा के साथ सटा हुआ खास करके म्यांमार बॉर्डर उस इलाके को पूरा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर लिया जा रहा है वहां में, और उसी तरफ से ताकि ये उसको लेके सक्षम ना हो तीसरे व्यक्ति को लेके भागने में और उनको म्यांमार ले जाने में, इसके ऊपर ही सेना की अभी पूरी कड़ी नजर बनाई हुई है। जी बिल्कुल रिपुंजय, हथियार का बरामद होना भी एक बड़ा सवाल बन चुका है इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दर्शकों को यहाँ पे हम एक बार फिर से बता दें कि ONGC के जो 3 अपहृत अधिकारी थे उनमें से 2 को रिहा करवा लिया गया है। सेना और असम राइफल्स ने कल रात भर अभियान चलाया, 3 बार, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया, 3 बार मुठभेड़ का भी सामना करना पड़ा इस अभियान के दौरान। लेकिन राहत की खबर यही है कि 2 अधिकारी अलकेश सैकिया और मोहिनी मोहन गोगोई रिहा हो चुके हैं। और जहां तक बात करते हैं हम तीसरे अधिकारी, ONGC के तीसरे अधिकारी रातुल सैकिया की, तो उनकी भी तलाश जारी है। सेना और असम राइफल्स अभी भी साझा अभियान चला रही है।